Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. So I'm Megha Gulshrestha and I'm going to discuss your NEET 2023 paper, right? And as you can see, I have already uploaded the botany part for you all. Means I can say I have uploaded from question number 101 to 150, okay? And now I'm going to discuss all about from 151 to 200. So in between you will see some botany questions also here, right? So here are some important instructions for you all. As you can see, this NEET exam is of 3 hour 20 minutes duration, okay, and the test booklet contains 200 multiple choice questions. How many? 200, okay, and every question here is of 4 mark. There are sections, section A and section B. You have to attempt all 35 questions from section A and only 10 questions from section B, right? It means every subject have two sections, like for botany, for zoology. So botany also you are having two sections. Section A, you have to attempt all the questions, and in section B you have to attempt 10 questions, right, from 15. Okay, clear? So please read all the questions because the first 10 questions will be counted, okay, and rest of the thing I hope you all know. Let us proceed then. So question 1 here is, question 1 is, I can say 151 question. Which of the following statements are correct regarding female reproductive cycle? Okay, question is all about your female reproductive cycle. So let us see the first statement. In non-primates mammal, cyclical changes during reproductions are called estrous cycle. So and this statement is all about non-primates. So I hope you know the difference between primates and non-primates. Primates and non-primates. Non-primates, say for example dog, cat, rat, deer and all. Primates are your apes, your monkeys, humans, right? Primates have large brain and they can use their hands. There is a uses of hands, okay. So the first statement is all about non-primates mammals cyclical changes which occurs during reproduction. This is called estrous cycle. This is true. This is true, okay. Next, first menstrual cycles begins at puberty and is called menopause. It is wrong statement because menopause was written. It is menarche, not menopause. First menstrual cycle is called menarche, not menopause. So this is false. Lack of menstruation may be an indication of a pregnancy. Of course, menstruation is not there, it can be the indication. So this is true here. Cyclic menstruation extends between menarche and the menopause, right? This is also correct, right? First menstrual cycle, when it starts, is called menarche. When the cycle stops, it is known as menopause. So this is also true. So answer here is option number 3. A, C and D are correct. Clear? Next question 152. Given below are two statements. Let us read the first one. Assertion. Amniocentesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child health care program, RCH program. It is one of the strategies for sex determination. No, this is false. Of course, by this strategy we can know the sex, but this is not the strategy, okay. Then ban on amniocentesis checks increasing menace of your female feticide. This is your true. Of course, we have to ban it because in many places you can see this technique is used to determine the sex, okay,
and if that fetus is female, then it may lead to the what, abortion. Okay, so this is bad. Okay, so here answer is both, sorry, A is false and R is true, right? Assertion is false here, region is true. Now match it, match list 1 with list 2. लेपर्ड एंड लाइन इन अ फॉरेस्ट, व्हाट डू यू थिंक? एक लेपर्ड और लाइन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या इंट्रैक्शन हो सकता है? ऑफ कोर्स दोनों ही कंपीट करेंगे, कंपटीशन होगा, दोनों ही मजबूत हैं एक तरह से, है ना? एक कुकू लेइंग एग इन द क्रो नेस्ट, कुकू जो है एक बर्ड है, वो क्रो के नेस्ट में अपना ले कर देती है एग, तो क्रो उसको इंक्यूबेट करती है, क्योंकि क्रो को लगता है, क्रो थिंक दैट उसका ही एग है ये, बिकॉज सिमिलर एग होता है कुकू का भी, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रूड पैरासिटिज्म. क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं, इस इंटरेक्शन को ब्रूड पैरासिटिज्म. ठीक है, क्या समझे आप? सो हियर यू कैन सी दिस पैरासिटिक बर्ड, हियर इज कुकू and host here is your crow. Okay, next, fungi and the root of higher plants in mycorrhiza. फंगस और रूट का एसोसिएशन, म्यूचुअलिज्म, है ना? बोथ गिव बेनिफिट टू ईच अदर, राइट? कैटल ईग्रेट एंड कैटल इन अ फील्ड. देखो कैटल के ऊपर एक बर्ड होती है ईग्रेट जो बैठी रहती है ना? तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? देखो कैटल को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ईग्रेट को फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज उसको जब कैटल ग्रेजिंग कर रही होती है तो बहुत सारे इंसेक्ट बाहर निकल के आ जाते हैं ना, जो छुपे हुए हैं, तो ईग्रेट को बहुत जल्दी आसानी से इंसेक्ट मिल जाते हैं खाने के लिए. तो ऐसी रिलेशनशिप, कॉमेंसलिज्म. ठीक है, आंसर हो गया हमारा 4. सामने सामने ही लिखे हुए आंसर्स. ओके, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या है? वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम वॉल्यूम of air a person can breathe. A person can breathe after your forced expiration, है ना? forced expiration के बाद, forcefully expiration किया, अब उसके बाद आप कितनी वॉल्यूम अंदर ले पा रहे हैं, समझ रहे हो? क्या क्या होगी? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सफुली आपने निकाली, और इवन योर टाइडल वॉल्यूम, है ना? ये सारी वॉल्यूम हम एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद हम अंदर ले सकते हैं. रेजिडुअल वॉल्यूम आपको पता है, जो कि हम कभी भी निकाल नहीं सकते अपनी लंग से, राइट? वी कैन नॉट रिमूव दिस. सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3. which one of the following commonly सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कम्प्लीटली क्योरेबल? देखो ये मैंने आपको वीडियो भी अपलोड किया हुआ है कि ट्रिपल एच, हेपेटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन, हर्पीस, ट्रिपल एच, देख रहे हैं, एच एच एच, ये तीनों ही क्योरेबल नहीं है. गोनोरिया है, अगर ये अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो इट कैन बी क्योरेबल. ओके, गोनोरिया कैन बी क्यूरेबल. ये तीनों ही वायरल डिजीजेस हैं. हेपेटाइटिस वायरस से होती है. ओके, जेनाइटल हर्पीस भी हर्पीस वायरस से होती है. HIV इन्फेक्शन HIV वायरस से होता है. गोनोरिया ही है जो निजेरिया गोनोरी बैक्टीरिया से होती है. तो गोनोरिया डिजीज को हम अगर अर्ली डिटेक्ट कर लें तो इट कैन बी क्यूरेबल. डन. नाउ मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. सो CCK is what? CCK is cholecystokinin. दिस CCK, दिस एक्ट ऑन योर गॉल ब्लैडर एंड योर पैंक्रियास, है ना? कहाँ पे एक्ट करता है? गॉल ब्लैडर पे और पैंक्रियास पे. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स क्या करते हैं? हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सिक्रीशन आ रहा है उसको इनहिबिट करते हैं, तो ऑफ कोर्स गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन रोकते हैं. ANF, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, कहाँ से निकलता है? ये हार्ट से निकलता है, राइट? इसका सोर्स क्या है? हार्ट है. ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं. दिस एक्ट ऑन योर किडनी. सो सम, कहीं कहीं आप देख रहे हो सोर्स पूछा गया है, कहीं कहीं टारगेट ऑर्गन लिखा हुआ है, तो मिक्स्ड अप क्वेश्चन है. आंसर हो गया हमारा 4. मैच कर रहे हैं रिंग वॉर्म, फिलारियासिस, मलेरिया, न्यूमोनिया. ओके, तो यहाँ पे जो रिंग वॉर्म है वो किससे होगा? फंगस से. यहाँ फंगस का नाम कौन सा है? ट्राइकोफाइटॉन.
ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मेटोफाइटोन, फाइटोन फाइटोन आ रहा है दोनों में, एपिडर्मेटोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ये तीनों फंगस दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, है ना। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से ये क्वेश्चन आया है। फिलेरियल वॉर्म, फिलेरियासिस, फिलेरियल वॉर्म है कौन सा, विचुरेरिया बैंक्रॉफ्टी, है ना। और एक और है विचुरेरिया मलाई। मलेरिया, मलेरिया आपका हो गया प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दिया है, और भी स्पीशीज हैं फैल्कीपैरम, ओवेल, मलेरी, है ना। तो यहाँ पे मलेरिया की प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। निमोनिया, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, राइट, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ऑल्सो, ये दोनों आपके बुक में दिए हैं। सो ह्यूमन हेल्थ से ये क्वेश्चन है, आंसर हो गया हमारा 4, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। नेक्स्ट मैच करना है, लेट अस सी पी वेव, क्यू वेव, क्यू आर एस, टी वेव। ओके, सो लेट अस ड्रॉ पी वेव, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो पी वेव की जब हम बात करते हैं, पी वेव क्या बता रहा है आपका, पी वेव बता रहा है आपका इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे हमारा दिस डिपोलराइजेशन हो रहा है एट्रिया का, राइट। सो पी वेव का हो गया डिपोलराइजेशन ऑफ योर एट्रिया, फाइन। क्यू, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, है ना, ये जो क्यू क्या दिखा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ योर सिस्टोल। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो दिस इज योर डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, आफ्टर डिपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। टी वेव इज द रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, है ना। टी वेव क्या इंडिकेट कर रहा है कि वेंट्रिकल्स फिर से रिपोलराइज स्टेज में आ रहे हैं। आंसर है हमारा 4। In which blood corpuscles the HIV undergo replication and produce your progeny virus, right? Macrophages को HIV की फैक्ट्री बोलते हैं, है ना, लेकिन ये अंडरगो रेप्लिकेशन एंड दे प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस वेयर, टी हेल्पर सेल्स में। कहाँ पे, टी हेल्पर सेल्स को ये नुकसान पहुंचाते जाते हैं, है ना, धीरे धीरे हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है। सो ऑल ऑफ यू नो दीज टी हेल्पर सेल्स होती हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं, सप्रेसर होती हैं, मेमोरी होती हैं, 4 तरह की होती हैं। आंसर हो गया हमारा 4। लेट अस रीड द 2 स्टेटमेंट। लो टेम्परेचर प्रिजर्व करता है एंजाइम इन टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट, टेम्परेचर कम है तो हमारी एंजाइम इनएक्टिव स्टेज में रहती हैं। हाई टेम्परेचर होता है तो एंजाइम हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन्स हमारी डीनेचर्ड हो जाती हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, ठीक है, अब सबस्ट्रेट का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का, ठीक है, और हमारा जो इनहिबिटर है वो भी कुछ कुछ इस तरीके का ही है, राइट। तो व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है, तो क्या करेगा, इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो ये आके यहाँ लग जाएगा, है ना, एक्टिव साइट पे, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हुआ ना, तो ये भी सही वाली बात हो गई, ट्रू, राइट। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट है। लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, आपने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं, कौन कौन से, लूज, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। लूज में आगे एरियोलर, एडिपोज, डेंस में आगे हमारे डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर, स्पेशलाइज्ड में आगे बोन्स, कार्टिलेज, योर ब्लड, ठीक है। तो ये जो हमारी लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, ये डेंस इरेगुलर नहीं होते, ये डेंस रेगुलर होते हैं। यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट देखोगे आप। सो दिस इज योर फॉल्स। कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, दिस इज ऑल्सो अगेन फॉल्स। तो आंसर हो गया हमारा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स हियर, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल, ये 4 हैं जो इसके पार्ट होते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर।
सो दे आर कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे क्या नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ऑफकोर्स, क्लोरोप्लास्ट नो, प्रोक्सिसोम्स नो, गॉट इट। तो हमारा हो गया आंसर नंबर 1 ACE ओनली। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नॉट कंसिडर्ड पूछा है, ACE होगा। A protein is imagined as a line, the left end represented by first amino acid C terminal and the right end represented by last amino acid। देखो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करो, C है ना, अल्फा कार्बन है ये, यहाँ पे हमारा NH2, यहाँ पे COOH, यहाँ पे हमारा R ग्रुप, यहाँ पे हमारा H। ओके, लेट्स सपोज एक और अमाइनो एसिड जोड़ देते हैं, सेम NH2 COOH, हियर वी हैव R। तो यहाँ से हमारा वाटर निकल गया H2O, इजंट इट, ठीक है। सो ये वाला जो हमारा लेफ्ट टर्मिनल है, दिस इज कॉल्ड N टर्मिनल, NH2 ग्रुप फ्री है, ये हमारा C टर्मिनल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, अपोजिट बात हो रही है। एडल्ट हीमोग्लोबिन जो होती है कितनी, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन होती है 4, 2 को कहते हैं अल्फा और 2 को कहते हैं बीटा। तो ये वाली बात ट्रू है, स्टेटमेंट हो गया 3, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, 2 हमारा ट्रू है। ब्रॉड पाम है विथ सिंगल पाम क्रीज, पाम ब्रॉड है और एक ही क्रीज है, ठीक है। तो ये हमने देखा था डाउन सिंड्रोम में होता है ना, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्या होता है, 21st क्रोमोसोम की ट्राइजोमी है ये, राइट, 2n+1, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा और बढ़ जाता है, डाउन सिंड्रोम। बायोमैग्निफिकेशन करेक्ट पूछा है, तो बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, है ना, ये बॉटनी का क्वेश्चन है। और इससे पहला वाला भी ये भी बॉटनी का था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से आया है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो आया है हमारा ये एनवायरमेंटल इश्यूज से आया है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस बार एनवायरमेंटल इश्यूज से। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रेस्ट्रिक्ट्स एल्गल ब्लूम, रेस्ट्रिक्ट लिखा है, नो, गलत, रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, प्रमोट करता है। एल्गल ब्लूम डिक्रीजेस, नो, इट इंक्रीजेस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स, नो, यूट्रोफिकेशन क्या है, एजिंग है लेक की। बायोमैग्निफिकेशन ठीक है हमारा, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे आप क्या देखोगे कि जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। जैसे DDT का एग्जाम्पल लीजिए, जू प्लैंकटन से, जू प्लैंकटन को खाने वाले उनमें ज़्यादा होगा, उनको खाने वाले लार्ज फिश, देन योर अल्टीमेटली योर बर्ड्स, फिश ईटर बर्ड्स, उनमें सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर 1 हो गया। लेट अस मैच इट, टेनिया, पैरामीशियम, पैराप्लानेटा एंड फेरेटेमा, ठीक है। टीनिया सोलियम फ्लैट वॉर्म में फ्लेम सेल्स होते हैं, पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, पैराप्लानेटा अमेरिकाना ये आपका क्या है, कॉकरोच, है ना। कॉकरोच में क्या है, यूरिकोज ग्लैंड होते हैं, एंड इवन यू नो यहाँ पे फैटी बॉडीज भी होती हैं, फैट बॉडीज, एंड इवन योर नेफ्रोसाइट्स along with your malphizian tubule, they help in excretion, excretion में हेल्प करते हैं। सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है NCERT में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है। पेरिटेमा प्रोस्टोमा आपका अर्थवर्म हुआ, नेफ्रिडिया होते हैं यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, है ना। आंसर हो गया हमारा 2। नेक्स्ट ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगेन देखो एनवायरमेंटल इश्यूज से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, हाँ, तो ये वाली बात सही है, थर्मल पावर प्लांट में ये यूज होता है, दिस इज ट्रू। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयोनाइजिंग रेडिएशंस, दिस इज रॉन्ग, आयोनाइजिंग रेडिएशंस रिमूव नहीं करता, राइट, दिस रिमूव्स पार्टिकुलेट मैटर, अप टू 99.9% ये पर्टिकुलर मैटर को रिमूव कर देता है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट 1 सही है बट 2 नहीं है सही। क्लियर। वास्ट डिफरेंस, ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है। वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम अ सेमिनियल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू अ यूरिथ्रा एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। देखिए ये आपको पता है वास्ट डिफरेंस है।
है ना, ये वहाँ से डिफरेंस है। सेमिनल वेसिकल से मिलके जो नेक्स्ट डक्ट बनती है, दिस इज कॉल्ड इजैक्यूलेटरी डक्ट, है ना, विच फाइनली कॉल्ड योर यूरिथ्रा, फाइन, विच ओपन्स इनटू योर यूरिथ्रा। तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक हो गई हमारी, ट्रू है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। सर्विक्स और योर वजाइना ये दोनों ही मिलके बर्थ कैनाल बना देती हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो जाते हैं। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। एडल्ट की बात हो रही है। एकाइनोडर्मिटा के लार्वा में क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है, लेकिन एकाइनोडर्मिटा के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है। ये भी रेडियल है सिलेंट्रेट, ये भी रेडियल है, टीनोफोर्स भी रेडियल है, हेमिकॉर्डेट्स बायलेटरल है। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था एनिमल किंगडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों को सब क्वेश्चंस पता ही चलते जा रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से था ये आपका था हमारा एनिमल किंगडम से। नेक्स्ट, पैप्टिक सेल्स, गॉबलेट सेल, ऑक्जेंटिक सेल्स, हिपैटिक सेल्स, ठीक है, ये आपका डाइजेशन से है। पैप्टिक सेल्स प्रोएंजाइम सेक्रेट करेंगे पेप्सिनोजन, पैप्टिक सेल्स पी से पेप्सिनोजन। गॉबलेट सेल्स हमारा म्यूकस सेक्रेट करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑक्जेंटिक सेल्स हमारा HCl सिक्रीट करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 भी करते हैं। हिपैटिक सेल्स आपके लिवर के सेल्स हो गए जो कि आपका बाइल जूस सिक्रीट करेंगे, ठीक है। तो क्लियर है, आंसर क्या होता है हमारा, आंसर हो गया यहाँ पे 2। ओके, ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ओके चलो कर लेते हैं ऐसे। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन। सो ए है फोबिया, बी है आयरिस, सी है ब्लाइंड स्पॉट और डी है हमारा स्क्लेरा, राइट। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, राइट। ए का 3 है हमारा। तो यहाँ पे फोबिया आप लोगों को पता ही है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी और रिजोल्यूशन, है ना, यहाँ पे ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन पावर है, तो फोबिया हो गया। और बी का है आइरिस, क्या है, आइरिस इज अ विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई दैट रेगुलेट डायमीटर ऑफ प्यूपल। आप देख सकते हो अपनी आईज को, ब्लैक पार्ट जो आप देख रहे हैं, है ना, वो आपके प्यूपल को रेगुलेट करता है, उसके डायमीटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ये वो पॉइंट है वेयर ऑप्टिक नर्व लीव द आई बॉल एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है, फोटोरिसेप्टर सेल्स यहाँ नहीं होते। देन बचा हमारा स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है, एक्सटर्नल लेयर है आई की, है ना, इट इज फॉर्म्ड बाय योर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आंसर क्या हो गया हमारा 4। Which of the following function is carried out by cytoskeleton in a cell? साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन है, एक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होते हैं, है ना, ये सेल की क्या करेंगे, ये जो साइटोस्केलेटन्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स इनके बने हुए हैं, दे एक्चुअली हेल्प्स इन द मोटिलिटी, है ना, दे हेल्प्स इन द मोटिलिटी। सो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस एंटर द केकम, कहाँ आ गया फूड, हमारा केकम के अंदर आ गया है, ठीक है, फाइन। लेट मी ड्रॉ दिस लार्ज इंटेस्टाइन। तो फूड हमारा यहाँ आ गया केकम में, राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन से। सो यहाँ पे एक वॉल्व होती है जिसकी वजह से जो फूड है केकम में एंटर होने के बाद बैकफ्लो नहीं कर सकता, इट कैन नॉट बैकफ्लो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उस वॉल्व का नाम क्या होगा, ऑफ कोर्स केकम है ये, और ये इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, डुडिनम, जजुनम, इलियम, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। इलियोकेकल वॉल्व है इसका नाम, फाइन। गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्टर मसल होती है जो कि आपकी ईसोफेगस और स्टमक के बीच वाली मसल है यहाँ पे। पाइलोरिक स्पिंक्टर हमारी हो गई दिस स्पिंक्टर बिटवीन स्टमक एंड योर ड्यूडेनम। स्पिंक्टर ऑफ ओडी हमारी है कहाँ पे, पैंक्रियाज की ओपनिंग पे, यहाँ पे स्पिंक्टर ऑफ ओडी है,
क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? राइट। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी कंट्रोल करती है हमारा पैंक्रियाज का जो सिक्रीशन आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूसेस। फाइन, आंसर हो गया हमारा 1। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डाइजेशन चैप्टर से है। वैसेक्टोमी, कीटस इंटरप्ट, सर्वाइकल कैप्स, ये हमारा किससे होगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। वैसेक्टोमी क्या है? सर्जिकल मेथड है, राइट, इट इज अ सर्जिकल मेथड। कोइटस इंटरप्ट्स, ये एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। सर्वाइकल कैप्स, these are the barrier methods like condoms, these are also barrier methods। सहीली एक ओरल मेथड है, सहीली इज अ मेडिसिन, तो ओरली हम इसे लेते हैं, तो ये एक ओरल मेथड हो गया। ठीक है, तो ये सारे मेथड हैं हमारे कॉन्ट्रासेप्शन के। वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड है, तो ये परमानेंट मेथड हो गया। फाइन, तो आंसर हो गया यहाँ पे 1, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जॉइंट से रिलेटेड है, हाँ, सो लोकोमोशन एंड मूवमेंट से चैप्टर से है ये क्वेश्चन। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो होते हैं हमारे कहाँ होते हैं? बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे इन योर वर्टिब्रल कॉलम, है ना। तो जो एडजेसेंट वर्टिब्रे होते हैं उनके बीच में क्या है? एक डिस्क होती है यहाँ पे कार्टिलेज की बनी हुई। तो इन दोनों के बीच में जो स्लाइटली मूवेबल आप जॉइंट कह सकते हो, आप थोड़ा बहुत मूव करते हो ना, बैंडिंग कर सकते हैं, है ना। तो यह है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो फ्रीली मूवेबल है ना। एक बॉल होती है सॉकेट के अंदर फिक्स्ड, तो जैसे कि आपका ये शोल्डर गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। दिस इज योर ह्यूमरस बोन, ये ग्लिनॉइड कैविटी कही जाती है। फाइन, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है हमारा, दिस इज इन बिटवीन ह्यूमरस एंड योर पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स हमारे ये स्कल की बोन्स में है, बिल्कुल फिक्स जॉइंट है ये। सैडल जॉइंट हमारा कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच का जॉइंट है। फाइन, आंसर है हमारा 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आरएनए म्यूटेट करते हैं एट अ फास्टर रेट, बिल्कुल सही बात है, आरएनए म्यूटेट करते हैं फास्टर रेट पे। वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, ये भी बिल्कुल सही हो गई बात। आपने कोरोना के बारे में सुना है ना, कितनी जल्दी जल्दी म्यूटेशन कर रहा था, भाई आरएनए वायरस है ना वो। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ट्रू हो गए। नेक्स्ट, इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। मॉलिक्यूलर बेसिस से ये चैप्टर से ये क्वेश्चन है। प्रोकैरियोट्स में पॉजिटिवली चार्ज डीएनए हमारा is held with some negatively charged proteins in a region called nucleoid। तो प्रोकैरियोट्स में जो पॉजिटिवली चार्ज डीएनए है वो नॉट हेल्ड विद नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, राइट। और पहली बात तो चार्ज ऑन डीएनए इज नेगेटिव, है ना, उल्टा लिखा है यहाँ पे, सो दिस इज फॉल्स। इन यूकैरियोट्स डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, ये वाली बात सही है। is wrapped around the positively charged histone octamer to form a nucleosome, of course this is true, है ना। ये न्यूक्लियोसोम है, इसके ऊपर हमारा डीएनए जो है लिपटा हुआ है। अनदर, ये न्यूक्लियोसोम कहलाया जाता है। इसका मतलब न्यूक्लियोसोम किसे बोल रहे हैं? न्यूक्लियोसोम हम बोल रहे हैं हिस्टोन को, हिस्टोन ऑक्टामर को, प्लस डीएनए जो रैप्ड है इसके चारों तरफ। तो स्टेटमेंट 2 जो है ट्रू हो गया, आंसर हो गया हमारा 3। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती है, डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के बीच में देखो, एक ये फीमेल है, ये मेल बॉक्स मेल, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन मेटिंग रिप्रेजेंट करती है। अब इन्हीं लाइन को हम डबल कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ओके, टर्म यूज करते हैं कॉन्संगुइनस। तो दिस इज द फर्स्ट सिंबल विच इज representing meeting between relatives। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से आ गया है। नेक्स्ट,
तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो बॉटनी से हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। देखो अगर ये आपने चार्ट देख के गए होगे आपके डायग्राम जो है इवोल्यूशन चैप्टर में, तो आपको पता होगा, नहीं तो नहीं, है ना। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ये हैं हमारे, एनसीईआरटी का डायग्राम था। ये देख रहे हो, मार्सुपियल मोल, मार्सुपियल माउस, नम्बेट, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर, टस्मानियन टाइगर कैट, टस्मानियन वोल्फ, ये हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, नम्बट, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है। ठीक है, बाकी में ना सब में प्लेसेंटल मैमल्स के नाम भी दिए हुए हैं, तो आंसर 1 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वैक्टर। क्लोन करने के लिए हम कौन सा एज अ वैक्टर नहीं यूज कर सकते। बायोटेक से आया क्वेश्चन। यैक और बैक आपको पता है क्लोनिंग वैक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, दीज आर द फुल फॉर्म्स। पीपीआर 322 भी बनता है, आपको बनाया गया है, बोलीवर एंड रोड्रिग्यूज साइंटिस्ट थे। पी फॉर प्लाज्मिड, है ना। प्रोब कैन नॉट बी यूज अ वैक्टर। प्रोब को हम क्लोनिंग वैक्टर की तरह यूज नहीं कर सकते। प्रोब जो हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स हैं हमारे डीएनए के, इनको हम रेडियो एक्टिव भी बना सकते हैं। ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से जाके जुड़ जाते हैं, राइट, एंड वी कैन डिटेक्ट दैम। आंसर हो गया 3, प्रोब को हम क्लोनिंग वैक्टर की तरह यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा हीरोइन, marijuana, कोकेन, मॉर्फिन ह्यूमन हेल्थ से है। तो हीरोइन जो है इट स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। हीरोइन किससे बनती है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, है ना। मॉर्फिन कहाँ से आया, जो आपका लेटेक्स आता है पेपेवर प्लांट से, पेपेवर सोमनीफेरम, पॉपी प्लांट है ना। सो marijuana जो है अफेक्ट करता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। marijuana, हशीश, चरस, गांजा, ये सब हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। फिर है हमारा कोकेन। ओके, कोकेन हमारा इंटरफियर करता है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन के ट्रांसपोर्ट के साथ। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम इराइथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, कोक, क्रैक, ये भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट इज मॉर्फिन इज यूज्ड एज अ पेन किलर। आंसर हो गया हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following technique does not serve the purpose of early diagnosis of disease for its early treatment। तो कौन सी इस टेक्निक को हम यूज नहीं कर सकते अगर हम डिजीज को अर्ली डिटेक्ट करना चाहते हैं। तो पीसीआर से कर सकते हैं, एलिजा से कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, बट सीरम और यूरिन एनालिसिस से हम अर्ली डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इट विल टेक टाइम। बाकी सबसे कर सकते हैं। ये भी आपका बायोटेक का ही क्वेश्चन है। आंसर हो गया 1। 2 स्टेटमेंट है, असर्शन और रीजन। असर्शन क्या कहता है, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ऑफ कोर्स जो अंदर की लेयर है एंडोमेट्रियम, वो ब्लास्टोसिस्ट उसके इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो डिजनरेट हो जाता है, दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो बॉडी इसे बोलते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये एंडोमेट्रियम भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट ये से एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है, अलग अलग बातें दोनों। So both assertion and delusion are true, but R is not the correct explanation. Okay, ये क्वेश्चन आ गया हमारा ZYA जीन, ऑपरॉन मॉडल है, मोलिकुलर बेसिस से आया है। पीपो याद है आपको, PIPO, ZYA, Z makes your beta galactosidase, Y is for your permease, and A is for your trans acetylase.
क्या बचा? आई. आई इज एन इनहिबिटर, राइट? इट इज रिप्रेसर प्रोटीन. इट इज अ रिप्रेसर प्रोटीन. तो आई होप नाउ यू कैन मैच. आंसर हो गया हमारा 1. दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. असर्शन क्या कहता है? नेफ्रॉन्स हमारे दो तरीके के होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रामेडुलरी. बिल्कुल होते हैं. कॉर्टिकल छोटे होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है. जक्स्ट्रामेडुलरी का लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा होता है. तो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स का शॉर्ट लूप ऑफ हेनले लिखा हुआ है. गलत हो गई ये वाली बात. पहली वाली बात ट्रू है. आंसर हो गया हमारा 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? यहाँ पे कॉकरोच की बात हो रही है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारी कॉकरोच की एनल स्टाइल, राइट? जो मेल में दिखती है फीमेल में नहीं दिखती, राइट? स्टाइल यहाँ पे हमारे मेल कर रहे हैं, कॉकरोच फीमेल नहीं मार रही स्टाइल. आंसर 1. नेक्स्ट. तो ये कॉकरोच वाला क्वेश्चन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से आया है. इससे पहले वाला क्या था? नेफ्रॉन्स का था. आपका एक्सक्रीशन से आया है चैप्टर से. नेक्स्ट है हमारा ये सेल साइकिल सेल डिवीजन से आ गया है, बॉटनी से. टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लैप्टोटीन. नो. प्रोफेज 1 की स्टेजेस याद है? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ठीक है, ये हैं 5 स्टेजेस. तो लैप्टोटीन में जो है क्रोमोसोम जो है कंडेंस हो रहे हैं. जाइगोटीन में देख कम क्लोजर सिनेप्सिस होती है. तो लेट अस सी. ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट. तो एनाफेज में क्या ये होता है? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और जो हमारे क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, है ना? ये सेपरेट हो जाएंगे. सही है, ट्रू है. टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटीन. पैकाइटीन में टर्मिनलाइजेशन होता है? नो. पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है. टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में होता है. टर्मिनलाइजेशन कहाँ होता है? डाइकाइनेसिस में. न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज. टेलोफेज में फिर से ये वापस बन जाएंगे, ऑफ कोर्स बिल्कुल रिफॉर्म हो जाएंगे ये. क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. अब यहाँ पर लिख रहा है सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होती है क्या क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर ये दोनों साथ में कर लेंगे? नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होगी. तो ये गलत है. चूज द करेक्ट आंसर. आंसर कौन कौन से करेक्ट है? बी एंड डी. बी एंड डी करेक्ट है, बाकी सब गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी. स्विच ऑफ लिखा है. स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर. भाई पानी का लॉस हो रहा है तो स्विच ऑन होने चाहिए या ऑफ होने चाहिए? ऑस्मो रिसेप्टर्स. गलत हो गया. ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं. फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस. ऑफ कोर्स ये डायूरेटिक हार्मोन है तो पानी को लॉस नहीं होने देगा आपकी बॉडी से, है ना? तो ये वाली बात ठीक है. ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कॉजेज वैसोडाइलेशन. हमारी वेसल्स को डायलेट कर रहा है ना? डायमीटर इंक्रीज कर रहा है. ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है, ये भी करता है. ADH कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. ADH की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा भाई. पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना फिर से, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा. बिल्कुल सही बात है. ADH इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR. GFR डिक्रीज क्यों करे भाई? GFR भी बढ़ाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी तो बढ़ाएगा ये. So ADH is responsible for decrease? No, it's responsible for increase. So answer here is 1 BCD. BCD सही है ना, बाकी सब गलत. ठीक है, कहाँ से आता है क्वेश्चन? एक्सक्रीशन से. ओके. और बहुत से हमारे यहाँ पे जो हार्मोन्स लिखे हुए हैं ऑफकोर्स, तो ये पूरा हम कह सकते हैं आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन से है ना. सारे हार्मोन्स ही हैं, ANF, ADH. सो दिस इज फ्रॉम केमिकल कोऑर्डिनेशन, राइट? लेट अस सी द नेक्स्ट. ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव. मेटाबॉलिकली इनएक्टिव लिख रहा है, गलत बात. G0 फेज में रेस्टिंग स्टेज कहते हैं, बट यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है सेल.
प्रोलिफरेट नहीं करती बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, बिल्कुल करेक्ट, एनसीईआरटी की लाइन है। सेल साइकिल सेल डिवीजन से ये क्वेश्चन है। आंसर हो गया 3, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ इनब्रीडिंग। देखो इनब्रीडिंग की वजह से, इनब्रीडिंग कराते रहो बार बार तो क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है ना। कुछ हार्मफुल जीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, नॉट एन एडवांटेज लिखा है, तो दिस इज नॉट एन एडवांटेज, इट डिक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन। ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, तो ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है ना। कंटिन्यूस इनब्रीडिंग कराते रहो, क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, तो दिस इज नॉट एन एडवांटेज। फाइन। इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, डिक्रीजेस लिख रहा है भाई, ये तो इंक्रीज कर रहा है ना, बार बार करा रहे हो तो इंक्रीज कर रहा है, ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया हमारा। लेट अस मूव अहेड। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है आपका, स्ट्रेटजीज से है ना, एलिमिनेशन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, स्टेबल एज पिरामिड। ऑर्गेनिज्म ऑन पॉपुलेशन से आया है ये क्वेश्चन, बॉटनी का है। लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमें एस शेप कम मिलता है, राइट। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या बता रही है, देयर इज अ लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन, रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है तभी हमें ऐसा शेप का कर्व मिलता है। एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन बताता है, इस तरीके का जे शेप का मिलेगा। एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड में ये प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग एज पिरामिड में द परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट, ऑफ कोर्स प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले ज़्यादा हैं, फॉलोड बाय रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सी का यही हो गया। ए स्टेबल एज पिरामिड की जब हम बात करते हैं, सो हियर वी हैव प्री रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट, राइट। द इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज के कुछ बराबर होते हैं, सेम होते हैं, सो दिस रिप्रेजेंट स्टेबल एज पिरामिड। आंसर है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के अंडर मतलब कौन सी चीज कंट्रोल नहीं करता हमारा, थायराइड हार्मोन, T3 और T4। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, इराइथ्रोपोइसिस करता है, करता है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम नहीं करता है ना, दिस इज द फंक्शन ऑफ योर थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये हमारा पीनियल ग्लैंड है, मेलेटोनिन हार्मोन। रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये क्वेश्चन हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन से है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, राइट, व्हाट डू यू थिंक। दिस इज द फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये सब हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, नॉट एनीथिंग आउट ऑफ सिलेबस। सी और डी हमारे जो है थायराइड हार्मोन के फंक्शंस नहीं हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल, नॉट अंडर द कंट्रोल पूछा है, तो आंसर हो गया हमारा 2, सी और डी। यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, मैमेलियन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हेयर्स होते हैं, पिन्ना है, मेमोरी ग्लैंड है। मोनोकॉन्डाइटिक स्कल है, नो। डाइकोंडाइलिक स्कल है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, नो, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यू नो दिस यू कैन सी इन फ्रॉग, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, जो इनर ईयर, जो आपका ईयर ड्रम है उसे बोलते हैं। सो दिस इज अगेन नॉट योर आंसर, आंसर हो गया हमारा 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के बारे में बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, करेक्ट ढूंढना है हमें। So muscle bundles are held together by collagenous connective tissue called fascicle. No, this is wrong. Fascicle लिखा हुआ है, मसल बंडल को ही fascicle बोलते हैं, not the correct. Sarcoplasmic reticulum muscle fiber is the storehouse of calcium ions, बिल्कुल सही है ना। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है, यहाँ पे कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं। Striated appearance of skeletal muscle fiber is due to
डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स, करेक्ट। क्यों लगता है स्ट्रिएशंस हमें? यहाँ पे स्ट्रिएशंस दिखते हैं, लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं ना, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से ही। M9 is considered as a functional unit of contraction called sarcomere. No, this is wrong. M is जो मिड लाइन में आप सेंटर में देखते हो उसको M लाइन बोलते हैं, तो दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन। यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन सार्कोमियर की वजह से ही कंट्रैक्शन होता है हमारा। सो दिस इज योर रॉन्ग स्टेटमेंट। आंसर है हमारा 1, बी और सी। करेक्ट बताने थे, बी और सी हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट बताने हैं। बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट, नो, बेसोफिल्स आर लीस्ट। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होते हैं, बेसोफिल कम। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन सिक्रीट करते हैं, यस। तो भाई ये सिक्रीट करते हैं तो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में भी ये इन्वॉल्व होते हैं, यस। बेसोफिल्स हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, नो। बेसोफिल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट्स, बेसोफिल्स आर ग्रैन्युलोसाइट। बेसोफिल, एओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल ये सब ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, नॉट ए ग्रैन्युलोसाइट्स। 2 हो गया आंसर, बी और सी सही है, बाकी सब गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड, द सीक्वेंस ऑन mRNA फॉर्म्ड इज एज फॉलोज, राइट। तो ये आपका मॉलिक्यूलर बेसिस से है, बॉटनी से क्वेश्चन आया है। लेट अस सी which of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence on mRNA is as follows। तो sequence बताया है mRNA का, क्या हो सकता है? जहाँ पे यूरेसिल होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा हमारा थायमीन। दिस इज द ओनली डिफरेंस, राइट। थायमीन हो जाएगा, यूरेसिल हमारा आरएनए में होता है, थायमीन हमारा डीएनए में होता है। सो इन प्लेस ऑफ यूरेसिल ओनली हमें थायमीन लगाना है, बाकी सब कुछ सेम होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। क्लियर? ओके। The parts of the human brain that help in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, ये सब जो आप बिहेवियर देख रहे हो, आपका गुस्सा आना, प्लेजर, सेक्सुअल बिहेवियर, दिस इज बिकॉज ऑफ योर लिम्बिक सिस्टम एंड योर हाइपोथैलेमस। ओके, लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। तो न्यूरल कंट्रोल से ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। मसल्स हैं, मसल्स कहाँ मिलेंगे हमें? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के पास, उनके बीच में, है ना। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल में आपको सीलेटेड एपिथेलियम मिलेगा, सो दैट यू कैन रिमूव एनी पार्टिकल, एनी म्यूकस। ब्लड क्या है हमारा? अभी अभी बताया मैंने, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या मिलेगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा, है ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आंसर हो गया 2। इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई, आई टोल्ड यू, माइल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के अलावा यूरिकोज ग्लैंड, नेफ्रोसाइट्स, फैट बॉडी, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। आंसर हो गया बी, सी एंड डी। ओके, पैलिक ग्लैंड जो है क्लब शेप ग्लैंड होता है मेल्स में। कोलैटरल जो ग्लैंड है ये फीमेल्स में होते हैं, दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऊतिका। Let us see the last question. Select the correct statement with reference to chordates. So let us see. Presence of mid dorsal solid, गलत बात है। Double nerve cord, no. Presence of closed circulatory system होता है, बिल्कुल सही है। Presence of paired pharyngeal gill slits होते हैं, ठीक है। Presence of dorsal heart, no. Presence of ventral heart, गलत हो गया। Triploblastic, pseudocoelomate लिखा है, no. We are trucoelomate, eucoelomate है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर हो गया हमारा बी और सी सही है, आंसर हो गया 1। गॉट इट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट हियर। ओके, थैंक यू।